So good morning to all of you. Now we will talk about effect of forces. So what effect force produce on a body? So when forces acts on a body, and as you all know about balanced and unbalanced forces, and as you know in balanced force condition, body doesn't move, but forces acts on the body. So when body doesn't move, this doesn't guarantee you कि forces are not acting on it. Maybe number of forces are acting on it, but they are nullifying each other. And if they nullify each other, then the net force is equal to 0. And in the second force, in the effect of force, that is unbalanced force, it creates motion. So right now we are talking about that forces which acts but do not create motion. That is, we are talking about the balanced forces. So if they are not creating any motion, so the net force is 0. Or you can say the summation of force, net force is 0, or you can say the summation, the algebraic sum of forces, is equals to 0. So when we take algebraic sum of all the forces and it comes out to be 0, then we say that the body is under the balanced force condition. Now in this we see body is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि जब बॉडी में फोर्सेस लगे लेकिन वह मूव ना करे, देन वी से बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. सो व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अगर यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मींस नॉट मूविंग, so what are the condition over here? What are the condition? The first condition, say acceleration. Now acceleration is given by force per unit mass. F is equals to ma from the Newton's second law of motion. So what will be the acceleration? तो अगर force ही 0 है, net force means is 0, there is no unbalanced force, so what will be acceleration? 0. So whenever we talk about the body is in equilibrium, तो ये confirm है कि वहाँ पे acceleration उसका 0 होने वाला है. Next, what is the condition? Next, we have already studied कि summation of, see this summation means algebraic sum. Algebraic sum means if F1 is, if this direction is taken as positive, this direction is taken in our convention, then F1 is positive and F2 is negative because we have taken this direction. So F1 minus F2, why we are taking? Because these are the vector quantities, है ना. तो algebraic sum हम लोग यहाँ पे ले रहे होते हैं. तो summation of F is equals to 0. This is the second condition. And the third condition कि body will be in equilibrium. Body is in equilibrium. So therefore we can say if body is in equilibrium, then above these three are the characteristics. That is, A is equals to 0, summation of force is 0, and the body will be in equilibrium. And also the forces, one more thing, the forces, all the means you can say all the forces in x direction, means all the forces in x direction, that is summation of fx is 0. All the forces in y direction, summation of fy is also 0. And all the forces in z direction, net forces in all z direction, जैसे 3 हम लोग कन्वेंशन लेते हैं ना, x नॉट कन्वेंशन, 3 डायरेक्शन लेते हैं ना, x y z, तो इन तीनों में भी नेट फोर्स हमारा क्या आएगा? 0 आएगा. If the sum of force is not 0,
देन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स। अगर ये सारा हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए कर रहे हैं। मीन्स इफ द सम ऑफ फोर्स इज नॉट जीरो, मीन्स ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता, सम ऑफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो, देन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस फोर्स विल क्रिएट मोशन। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है तो वहां पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि मोशन क्रिएट करेगा और बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगी। अगर समेशन ऑफ एफ जीरो नहीं होता है तो वहां पे मोशन आ जाएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में FBD भी कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता है? तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, तो इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग? तो बेसिकली ये टेक्निक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो FBD क्या है कि इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये एक टेक्निक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या चल रहा है कि बॉडी या मींस या नहीं, मींस इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब यही ना है कि अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पे नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो है, मींस बॉडी नहीं चल रहा है। तो मींस इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि या तो बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? एक तो हुआ ये टेक्निक टू फाइंड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, और बेसिकली इसका डेफिनेशन हम लोग कहते हैं इट इज अ डायग्राम showing the body as a particle and all forces as vectors that acts on particle is free body diagram। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक से ये दिस 10 kg, ये 5 kg, मतलब जो बॉडी हमने ली है, जैसे ये बॉडी हमने ली है, तो फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी को हमने बाकी बॉडी से अलग कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ये पुली सिस्टम बनाया हमने, ऐसे डिटेल में पुली को भी पढ़ेंगे हम। सो ये एक पुली सिस्टम हमने बनाया और इसमें एक स्ट्रिंग पड़ी है ना, और इस पे दो वेट लटका दिए हैं, एक 10 kg का और एक 5 kg का। अब इसके अंदर मोशन होगा और ये घूमेगा। ये क्या करेगा, ये 5 kg इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये 10 kg इधर ले जाना चाहेगा। लेकिन इफेक्ट क्या होगा कि ये 10 kg वाला चूंकि हेवी है तो ये इसको इधर ले जाना चाहेगा, ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे, है ना। तो अब इसके अंदर जो मोशन होगा और ये घूमेगा, तो इसके घूमने में ये पूरी चीज दिखेगी, ये कैसे घूम रही है। अब आप पूरी चीज का कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं, हम बस ये 5 kg का कैलकुलेशन करेंगे और इसके साथ क्या हो रहा है। सो वी फ्री 5 kg बॉडी फ्रॉम द सिस्टम एंड वी सी इट सेपरेटली। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 5 kg को यहां से फ्री कर दिया। जैसे सपोज दैट ये 5 kg मास है, इसको हम लोगों ने यहां से फ्री कर दिया और इसमें हम लोग सेपरेटली फोर्सेस देखेंगे। तो यही होता है हमारा
फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे हम लोगों ने इसको फ्री कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करें, एक बार डेफिनेशन से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला अ डायग्राम शोइंग द बॉडी एज अ पार्टिकल, इस बॉडी एज अ पार्टिकल एंड ऑल फोर्सेज एज वेक्टर्स, ऑल फोर्सेज एज वेक्टर्स मीन्स किधर पे फोर्सेस लग रहे हैं वो हम लोग दिखाएंगे। जैसे ये स्ट्रिंग, इसको ये जैसे इधर खींचे, इधर जाना चाहेगा तो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा, तो इस स्ट्रिंग में एक तनाव आएगा जिसको हम लोग एक फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं टेंशन फोर्स। इसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो अपना खुद का वेट है वो क्या होगा, ये नीचे की ओर ले जाना चाहेगा। वेट हमारा क्या होता है mg, है ना, तो 5 × g, ये इसको नीचे ले जाना चाहेगा। मीन्स इस पे जो लगने वाले जो फोर्सेस थे, जैसे एक नीचे हमारा हो गया mg और रस्सी में क्या आ गया टेंशन, बस यही है फ्री बॉडी डायग्राम और यही आपको आपके टारगेट पे पहुंचा देगा। तो हियर वी कैन सी द मोशन, क्या है कि जैसे ये इधर जा रहा है मीन्स ये ऐसे की ओर ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहां हम टेंशन भी डिफरेंट सिचुएशन में कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें से आप, है ना, टेंशन भी डिफरेंट सिचुएशन में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। टेंशन के बारे में भी हम लोग इन डिटेल जानेंगे भी कि क्या होता है, वो कहां से आता है। तो आई होप कि इट इज गेटिंग क्लियर टू यू। तो यहां से जैसे ये मोशन ऊपर हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये 10 kg नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इसके मोशन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ये बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा मोशन किस तरफ होता है, जिधर फोर्सेस अधिक हो। तो ये बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है मीन्स जाहिर सी बात है ये जो टेंशन फोर्स है ये अधिक होगा, है ना। तो टी बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, मान लेते हैं एक तरफ तुम्हारा 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ 8 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स और तुम्हारा मोशन किधर होगा, ये बड़े फोर्सेस की तरफ। तो ये बॉडी अगर ऊपर जा रहा है, मान लेता हूं ये ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये बड़ा फोर्स हो गया T माइनस 5g विल बी इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स इज गिवन बाय मास इंटू एक्सिलरेशन बाय न्यूटन सेकेंड, हो ना, m इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज योर मास एंड ये a इज योर एक्सिलरेशन। तो ये इस एक इक्वेशन बन गया। तो इससे हम लोग टेंशन अलग अलग जगह पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, है ना। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट, बस फ्री कर देना है उसको। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेंशन। ये टेंशन फोर्स क्या है। सो यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस लाइक स्ट्रिंग में टेंशन, रोप में टेंशन, ऐसे टेंशन वाले सवाल काफी आपको मिलेंगे। सो टेंशन होता क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ओके, नाउ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो टेंशन, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है इसमें कुछ बात आपको ध्यान रख लें और समझने के लिए, ये समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इसको स्ट्रिंग से बांधा, स्ट्रिंग से आपने बांधा और इसको खींच रहे हैं। तो सपोज दैट आपने इसको इधर खींचा, स्ट्रिंग से बांधा और आपने इसको खींचा। तो अगर खींचते हैं तो इसके सारे एटम्स, जैसे ये रस्सी में तो काफी सारे एटम्स होंगे, ये सारे एटम्स हैं जो इनके अंदर ना। अभी जैसे मैंने इस पे एक फोर्स लगाया तो ये एटम इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये एटम इस पे एक फोर्स लगाएगा। मींस अगर ये एटम इधर की ओर जा रहा है तो ये एटम को इधर खींचेगा। ये जैसे मैंने इस पे लगाया तो ये एक इधर पे, ये मैंने इस पे लगाया इस एटम पे, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक टेंशन कैसे क्रिएट हो रहा है। और ये एटम, अब ये लास्ट एटम है तो ये किसको खींचेगा, ये इस बॉडी को खींचेगा ना। यहाँ पे दो तरफा खेल चलता है,
ये जैसे जो आपने लगाया है, यहाँ दो तरफा खेल क्या है, अभी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आपने इसको खींचा तो ये एटम आपके हाथ को इधर खींचेगा, इसने इसको खींचा तो इस एटम ने इसको ऐसे खींचेगा, ये एटम ने इसको इधर खींचा, ये एटम ने इसको इधर खींचा तो ये एटम ने इसको इधर खींचा तो ये एटम इसको इधर की ओर खींचेगा, है ना। तो आप देख रहे हो इसको, ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो हो रहा है टेंशन केवल एक तरफा नहीं होता है, ये दो तरफा होता है। एक जगह पे टेंशन की वैल्यू होती है वो आइदर वे होती है, आइदर वे मीन्स टेंशन जो लग रहा होता है ये दोनों तरफ होता है। तो जहां भी रस्सी ज्वाइन होता है वहां पे टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये ऐसा नहीं है कि इस रस्सी में हमारा टेंशन दोनों वे में है, दोनों डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी है, अब इस डायरेक्शन में, लेकिन हम लेंगे कौन सा फोर्स। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि टेंशन जो होता है वो आइदर वे लगता है, और इसको ये क्या है कि टेंशन जो है ये हमेशा पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता, इट ओनली पुल्स। ये दो चीज याद रखिएगा, ये टेंशन जो है ये आइदर वे डायरेक्शन में लगता है और ये केवल पुल कर सकता है, ये पुश नहीं कर सकता है। ये दो चीज है, टेंशन इज आइदर वे एंड इट कैन ओनली पुल। ये दो चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी इस बॉडी पे मैं यहां पे देखूं, इस बॉडी पे यहां पे मैं देखता हूं, सपोज दैट ये मैंने इधर पे इसको फोर्स लगाया, इधर पे, या फिर एक और बॉडी को आप यहां पे लगा दो और इस बॉडी को मैंने यहां से खींचा, तो ये जो टेंशन है, टेंशन क्या करता है, ये केवल पुल कर सकता है, पुश कर सकता है। मींस यहाँ पे जो टेंशन है वो ऐसे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन वो ऐसे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है। लेकिन हम जैसे इस बॉडी के लिए टेंशन कौन सा लें, ये वाला लें या ये वाला लें, अब ये कंफ्यूजन है। तो हम लोग क्या बोले कि सबसे पहला बोला कि स्ट्रिंग में टेंशन आइदर वे लगता है, मींस इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन। लेकिन हमने क्या बोला कि टेंशन पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। अगर इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी की बात करें तो ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग में पुशिंग नेचर का आ रहा है। अगर आप देखें ये इस टेंशन को, तो इस बॉडी पे क्या आ रहा है, ये इधर पे लग रहा है, इधर पे लगेगा मतलब ये उसको पुश करना हो गया, जो कि ये पॉसिबल है नहीं। और उसी तरह से इस बॉडी पे देखें तो टेंशन क्या है कि अगर यदि मैं इसको लूं तो ये पुशिंग नेचर का दिखेगा, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि टेंशन हमेशा क्या होता है, पुलिंग नेचर का होता है। तो इस बॉडी पे ये पुल करता हुआ दिख रहा है या ये पुल करता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली है ये पुल करता हुआ दिख रहा है। तो इस बॉडी की मैं बात करूं तो ये रहा उसका टेंशन, है ना। जैसे ये इस बॉडी की मैं बात करूं तो दिस वन इज योर टेंशन। और अगर मैं इस बॉडी की, वेयर इज माय ब्लू पेन मैन, अगर मैं इस बॉडी की मैं बात करूं तो उसके लिए ये हो गया हमारा टेंशन। जबकि दोनों इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम है। एक स्ट्रिंग की मैं बात करूं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, प्रोवाइडेड ये मासलेस स्ट्रिंग हो या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो। तो जो ये टेंशन डेवलप करने वाला है, ये भी आप लिख लो कि टेंशन इन स्ट्रिंग, इन सेम स्ट्रिंग इज सेम, in same string is equal, और you can say same, वो सेम होता है ना। तो क्या क्या हमारे को देखा, हमने देखा कि टेंशन आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे ये आइदर वे लग रहा है, और ये कैसा नेचर का होता है, पुलिंग नेचर का होता है। और टेंशन हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रिंग की मैं बात करूं तो वो हमेशा सेम होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो ना। जैसे कि अगर यदि इसी में पिछले वाले इस फ्री बॉडी डायग्राम में ही मैं एक बार फिर से इसको बनाना चाहूं तो ये जैसे हो गया हमारा, ये एक पुली सिस्टम हो गया,
ये 10 kg ब्लॉक, ये 5 kg ब्लॉक। तो जैसे मैं इस बॉडी की मैं बात करूं तो इस बॉडी में लगने वाला टेंशन ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और अगर यदि मैं इस पुली की मैं बात करूं, इस पुली की मैं बात करूं तो इस पुली पे लगने वाला टेंशन इधर पे होगा, है ना। लेकिन दोनों जो टेंशन है वो है क्या, सेम है। अभी ये जो सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो इस पार्ट वाले स्ट्रिंग में भी लगने वाला जो टेंशन है वो टी ही होगा। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक की मैं बात करूं, इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो ये पुलिंग के लिए ये हो जाएगा हमारा। लेकिन इस पुली के लिए मैं बात करूं तो इस पुली के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टेंशन का डायरेक्शन। तो एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम ही होता है और वो आइदर वे डायरेक्शन में लगता है, वो दोनों डायरेक्शन में लग रहा होता है। क्यों होता है, रीजन मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, समझा रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि ये आइदर वे में लगता है, इसलिए तो आपने जब इधर खींचा तो आपको ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि ये भी इसको खींच रहा है ना, ये आपके हाथ को इधर खींच रहा है, इसलिए तो आपको ताकत लगाना पड़ रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, सो नाउ अब इसी कंडीशन में अब हम लोग देखते हैं, इस वाले कंडीशन में अब हम लोग एक्सीलरेशन निकालने का कोशिश करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ वेट ऑन पुली, इसी पे। और फिर आगे हम लोग और भी सारे ये लेंगे। तो इस यहीं पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ये इसके लिए भी था, इसके भी आप समझ सकते। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ वेट ऑन पुली। अब यहाँ पे जो आप बात करोगे इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन क्या होगा कि एक तरीके से केवल आप एक ही चीज आप निकाल पाओगे, एक्सीलरेशन, है ना। लेकिन अगर यदि आप उससे टेंशन निकालना चाहो तो उस वे से वो निकलेगा नहीं, है ना। तो सबसे पहला वे हम लोग देखते हैं जो कि एज अ होल पूरे बॉडी को मैं एक लेकर के चल रहा हूं। यहाँ पे हाँ एक और चीज याद रखें कि हम लोग जब भी अभी पुली सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या क्या कंडीशंस होने वाले हैं। जो हम लोगों के साथ जो कंडीशन होने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, और वो है कि पुली, इसको मैं नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मीन्स यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो पुली जो हमारे लिए क्या होने वाला है, अभी मासलेस अथवा फ्रिक्शनलेस होने वाला है ना। तो ये चीज आप मान के चलिए, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप मान के। और एक और चीज होता है कि पुली इज फिक्स्ड, पुली इज फिक्स्ड। अभी फिलहाल हमारे लिए क्या है, पुली फिक्स्ड है, मीन्स ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं और एज अ होल पहला मेथड हम लोग देखेंगे, एज अ होल पूरा सिस्टम लेकर के चलेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं भाई। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो ये क्या करेगा, ये जो है मैं ये कंडीशन ना लेता हूँ, ये एक स्पेशल कंडीशन हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट डायग्राम ही बना लेता हूँ। जैसे कि ये एक सिचुएशन है, इसको ना करके मैं दोबारा से कुछ जनरल कंडीशन में ले रहा हूँ। जैसे ये हो गया हमारा M1 और इसको मैं ले लेता हूँ M2, और ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। ये हमारा सिचुएशन है, कंडीशन है। नाउ सपोज दैट यहाँ पे जब हम टेंशन की बात करें तो ये हमारा टेंशन इस डायरेक्शन में, इसके लिए मैं देखूं तो ये लगा इधर, और इसके लिए मैं देखूं तो ये लगा इधर। ये जो इसका वेट है इसको नीचे ले जाना चाहेगा M2G,
और ये जो इसका वेट है ये इधर लगेगा m1g। अभी यहाँ पे आप देखो कि ये m2 बड़ा है, मीन्स ये इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, और इसका इफेक्ट कम है। ये इस पुली को ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। ये कैसा घुमाने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। और ये जो है जिसका इफेक्ट कम है ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये कैसा कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा। बट क्या है कि हमारा m2g ये बड़ा है, ये m2 बड़ा है, मीन्स इसका इफेक्ट ज़्यादा है, मीन्स क्लॉकवाइज वाले का इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है और यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इफेक्ट जो है इसका अधिक होगा। नेट इफेक्ट अगर देखें तो एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि नेट फोर्स देखा जाए, ये अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंटरनल फोर्सेस डज नॉट क्रिएट मोशन। तो अभी मैं इधर पे मैं बात करूं तो ये m1 m2 के बीच में ये टेंशन लग रहा है, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गया एक तरह से कहा जाए। इसको अगर सीधा करके मैं देखूं, इसको मैं सीधा करके देखूं कि ऐसे इसी चीज को मैं खोल दे रहा हूं बस, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये m1। तो ये फोर्स, इसको बस मैंने ऐसे लिया और ऐसे सीधा कर दिया, तो इस तरफ पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, m1g, और इधर पे जो लगने वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा, m2g। और इसके बीच में जो लग रहा है यह फोर्स, ये क्या है, एक तरह से कहें तो इंटरनल फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस, ये अगर इसको मैं सिस्टम ले लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स हमारा मोशन क्रिएट नहीं करता है। तो अगर यदि मैं देखूं इंटरनल फोर्स मोशन क्रिएट नहीं करता है तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, और सीधा मैं देखता हूं कि एक ये इधर पे एक्सटर्नल फोर्स लगा और एक इधर पे फोर्स लगा, ये दोनों को एक सिस्टम ले लिया, तो इसके बीच में जो भी लग रहा है फोर्स वो क्या हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। तो इधर पे देखो, इधर पे बड़ा फोर्स ये इधर पे की ओर जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ए एक्सीलरेशन, ये ऐसे जा रहा है ए एक्सीलरेशन। तो ये ओवरऑल अगर खोल के देखा मैं तो ये ऐसे जा रहा है। तो इधर पे बड़ा फोर्स ये हो गया m2g माइनस इधर पे छोटा फोर्स हो गया m1g इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स हम लोग क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, नेट मास ऑफ द सिस्टम क्या होगी, ये पूरा सिस्टम का एक मास है, ये पूरे को मैंने एक सिस्टम ले लिया, तो यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ये एक्सीलरेशन a। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, g यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो g m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये जो है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ से अगर मैं टेंशन निकालना चाहूँ तो वो हमारे लिए एक कष्टदायी होगा, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसा होल देख रहे हैं, पूरे सिस्टम को एज वन मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे टेंशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए किसी को भी मैं फ्री कर देता हूँ, जैसे मैं m2 को फ्री कर देता हूँ, तो इधर पे लगने वाला फोर्सेस ये फ्री कर दिया। अभी इस पे फोर्सेस मैं दिखाऊंगा इन अ वेक्टर फॉर्म। तो टेंशन ऊपर लग रहा है, m2g मेरा नीचे लग रहा है। तो मैं इस बॉडी के लिए देखूं तो ये बड़ा फोर्स हो गया, ये a एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। तो इस पे मैं देखूं तो इधर पे मैं मोशन देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। अभी a का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट करा हुआ है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेंशन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ए के वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा और टेंशन के वैल्यू को मैं निकाल सकता हूँ। तो ये कब लिया, जब एज अ होल एक सिस्टम मैंने मान लिया। अब इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम से अलग अलग करके मैं समझने का कोशिश करूँगा और देखूँगा क्या हमारा रिजल्ट सेम आता है। तो ये हो गया, उसी को मैं देख रहा हूँ सेकेंड वे से। तो ये रहा हमारा m1, ये रहा हमारा m2, इस पे टेंशन लगने वाला इधर, ये लगने वाला इधर,
अभी मैं M2 को मैं फ्री करके देखा, M2 को मैं फ्री कर देता हूँ। अगर M2 को मैं फ्री कर दिया तो ये हो गया M2, इधर पे लगा T, ये इधर, ओह सॉरी, ये इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया M2G। तो M2 के लिए मैं देखा तो ये आ जाएगा हमारा M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। अभी मैं M1 पे मैं बात करूं, M1 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम देख करके मैं बनाता हूं और मैं बात करता हूं। तो ये हो गया हमारा T और ये हो गया M1G जो इसका वेट खुद का। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर पे ये बड़ा हो गया टेंशन। तो T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 पे। अब ये जैसे दो हमारे इक्वेशंस आए, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एडिंग 1 एंड 2, अगर यदि मैं 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा M2G माइनस T प्लस T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M2A प्लस M1A। तो यहाँ से ये T कट गया, इन दोनों में से जब मैं G को कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे को बचेगा M2 माइनस M1 इज इक्वल्स टू A M1 प्लस M2। तो यहाँ से आया मेरा A इज इक्वल्स टू G M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2। ये आया हमारा एक्सीलरेशन, जो पहले भी आया था मेरा, लेकिन इसके साथ क्या था कंडीशन, ये मैंने पूरा एज अ होल ले लिया था। ठीक है, ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन। अब क्या है कि हम लोग इस A के वैल्यू को हम लोग अब यहाँ पे T मेरे को सॉल्व करने, T का वैल्यू हमको सॉल्व करके लाना है। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A, और दूसरा इक्वेशन है T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। तो यहाँ से मेरे को T का एक्सप्रेशन लाना है। तो एक तो है कि इसको मैं इधर पे कहीं पे पुट कर दूँ, या फिर मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ M1 से और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ M2 से। तब मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा M1 M2G माइनस TM1 इज इक्वल्स टू M1 M2A, और उसके बाद इधर पे आ जाएगा TM2 माइनस M1 M2G इज इक्वल्स टू M1 M2A। अभी मैं इधर पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो आपस में कट गया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 M2G और ये भी M1 M2G, ये आ जाएगा हमारा 2M1 M2G। और यहाँ से मैं इन दोनों से T को मैं कॉमन ले लूँ तो T M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं T का वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाने वाला है हमारा ये इधर पे आ जाएगा। तो T इज इक्वल्स टू 2M1 M2G बाय M1 प्लस M2। तो ये रहा हमारा टेंशन का वैल्यू। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अब जैसे हम लोग कनेक्टेड मोशन की मैं बात करता हूँ। कनेक्टेड मोशन की मैं बात करता हूँ, जैसे कि एक बॉडी यह हो गया, ये भी एक तरह से था, ये पुली सिस्टम को भी मैंने यहाँ पे कनेक्टेड सिस्टम बनाया था। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे M1 M2 M3 और इधर पे लगाया मैंने F फोर्स, इस पे लगाया मैंने। अभी ये सारा का सारा बॉडी हमारा जा रहा है विथ एक्सेलरेशन एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि
व्हाट इज एक्सीलरेशन दिस ए। नाउ यहाँ पे आएगा, अगर आपसे पूछूं कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में क्या टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा, तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यस इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होने वाला है। क्यों ऐसा नहीं होने वाला है? बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है ना। और हमने बोला था कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, ना कि अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि इस स्ट्रिंग में जो डेवलप कर रहा है वह टेंशन T1 है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप कर रहा है वह टेंशन T2 है। और एज ऑलरेडी वी नो कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, आइदर वे में होता है, बट द बेसिक नेचर इज इट कैन पुल ओनली, ये पुश नहीं कर सकता। तो एज अ होल अगर यदि मैं बात करना चाहूँ, एज अ होल सिस्टम में बात करना चाहूँ, तो मैं अगर यदि नेट फोर्स एक्सीलरेशन की मैं बात करूँ, तो एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स, या कह सकते हैं टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वह ये एकमात्र ही तो फोर्स लग रहा है। अब इनके बीच में जो लगने वाला वो सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स हो जाता है, और इंटरनल फोर्सेस मोशन क्रिएट नहीं करते हैं। तो F बाय टोटल मास क्या हो गया, इन तीनों के मास को जोड़ दो तो वही टोटल मास हो जाएगा इस सिस्टम का। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। नाउ अगर यहां से मैं टेंशन निकालना चाहूँ, T1 निकालना चाहूँ, तो T1 क्या है ना, T1 जो है ये इस मास को केवल खींच रहा है, इस मास को खींच रहा है विथ कितना एक्सेलरेशन, विथ ए एक्सेलरेशन। तो T1 विल बी, और पीछे से ये तो स्मूथ सरफेस है, अभी हमारा फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं आया, तो T1 अगर देखा जाए तो ये m1 इंटू ए हो जाएगा, m1 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, m1, और a की जगह में हम लोग लिख सकते हैं F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ना उस तरह से अगर मैं T2 निकालना चाहूं, तो T2 ये किसको खींच रहा है, इन दोनों को ये खींच रहा है, T2 इन दोनों को ये खींच रहा है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर यदि इन दोनों को मैं लेता हूं एक सिस्टम, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों को खींच रहा है कितना एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे T2 अगर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 और F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी आप देख सकते हो। जैसे ये हम लोगों ने तो एज अ होल देखा, जैसे अगर यदि मैं इस सिस्टम की बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम लेकर के मैं देखूं, तो m3 के लिए देखा, m3 के लिए क्या हो जाएगा, F माइनस T2 इज इक्वल टू m3a। फिर m2 को अलग करके देखा, तो इस पे T1 इधर T2 इधर, m2 के लिए देखा तो इधर पे T2 है, T2 माइनस T1 इधर पे है, m इज इक्वल टू m2a। अब मैं केवल m1 के लिए देखता हूं, तो इस पे पीछे वाला तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये सीधा सा यही फोर्स है, T1 इज इक्वल टू m1a। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये क्या आएगा, माइनस T2 प्लस T2, ये आपस में कट गया, माइनस T1 प्लस T1 ये आपस में कट गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, F इज इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड कर दो तो m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से A इज इक्वल्स टू F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये A को यहां पे रखो, T2 निकल जाएगा, इस A को यहां रखो, यहां पे रखो तो T1 निकल आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं ना। नेक्स्ट है अब हमारा देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कनेक्टेड मोशन विदाउट स्ट्रिंग, और वी कॉल इट एज खसकाना, दो बॉडी को साथ लगा के। इन हिंदी वी यूज टू से खसकाना, कनेक्टेड मोशन। जैसे कि यहाँ पे एक मास ये हो गया, ये दूसरा मास हो गया, ये m1 और यह है m2, और इधर पे लगा रहा है मैंने, अभी सारा स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये एक है F हमारा इधर पे लग रहा है ना। अभी यहाँ पे हमको नेट एक्सेलरेशन देखना है ना।
और इसके बीच में लगने वाला फोर्स देखना है। तो मान लेते हैं m1 जो m2 पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज योर F1, दैट इज योर F1। तो यहाँ पे अगर यदि मैं बात करूँ नेट एक्सीलरेशन की, तो यहाँ पे नेट फोर्स बाय टोटल मास, तो A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज F, यही एकमात्र फोर्स है, और m1 प्लस m2। जैसे अभी इसके बीच में जो एक F1 m1 m2 पे लगाया F1, m2 भी m1 पे लगाएगा माइनस F1, तो ये आपस में इनके बीच में लगने वाला जो है वो इंटरनल फोर्सेस होता है ना। तो उसी तरह से अगर केवल F1 में कैलकुलेट करना चाहूँ तो F1 मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको धक्का मार रहा है तो ये m2 को मूव कर रहा है, तो m2 इंटू A, तो यह हो जाएगा m2 F बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एक और केस ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये रहा हमारा m1, ये मैं ले लेता हूँ m2 और ये ले लेता हूँ मैं m3, और इधर पे लगाया मैंने फोर्स F। अभी यहाँ से मान लेते m1 जो m2 पे लगा रहा है वह फोर्स है F1, और m2 जो m3 पे लगा रहा है वह मान लेता हूँ F2। तो अगर यदि मैं F1 की बात करूं, यदि टोटल एक्सीलरेशन की मैं बात करूं यहाँ पे, टोटल एक्सीलरेशन की, तो टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज F और बाय टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3, यह हो गया। अभी यहाँ से मैं F1 की मैं बात करूं, जैसे F1, तो F1 इज रेस्पॉन्सिबल टू पुश दिस m2 एंड m3 बोथ। तो यहाँ पे नेट मास ऑफ द सिस्टम, ये F1 इधर पे लग रहा है, तो ये किस पे लग रहा है, ये m2 और m3 दोनों को लगा आगे बढ़ा रहा है। तो m2 m3 इंटू ये एक्सीलरेशन, तो m2 m प्लस m3 इंटू एक्सीलरेशन इज F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और अगर यदि मैं बात करूं कि व्हाट इज F2, तो F2 इज केवल m3 पे लग रहा है, तो m3 इंटू A, और A का वैल्यू यहाँ से पुट करो। तो ये भी एक तरह का क्या था, हमारा कनेक्टेड मोशन ही था। नाउ नेक्स्ट जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नाउ व्हाट वी विल स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, कि जब रॉकेट उड़ता है आसमान में तो रॉकेट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। और कैसे उड़ता है रॉकेट, कैसे शूट होता है, तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरी होती है और जब ये लिक्विड फ्यूल बर्न होती है तो उसमें गैसेस जो निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा, जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो गैस इतनी फोर्सफुली निकलती हैं तो कि जब वह पीछे की ओर निकलती है तो उसके ही कारण एक्शन और रिएक्शन हो जाता है और रॉकेट ऊपर चल पड़ता है। तो रॉकेट के उड़ने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट्स वाई वी कैन सेंड रॉकेट एनीवेयर। पर जो एरोप्लेन उड़ता है तो उसके उड़ने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि वह एयर से एक्शन रिएक्शन मांगता है। रॉकेट में खुद गैसेस निकलते हैं और गैस तेजी से नीचे जाते हैं और रिएक्शन होती है और उससे ऊपर जाता है। इस प्रोसेस में जो फ्यूल निकल रहा है ना, वो उसकी उस रॉकेट का ही पार्ट है, तो वहाँ इंटरनल फोर्स बन गया ना वो, तो कंजर्वेशन और मोमेंटम यहाँ पे बराबर चल रहा होता है। सो now we will now try to find at any time how much velocity is of that rocket and their important formulae. So we will try to understand that. So what we are going to study, rocket propulsion. Now जैसे हम लोग कुछ सिचुएशन बनाते हैं, ये एक पहला सिचुएशन है जिसमें ये पूरा फ्यूल भरा हुआ है ना,
और रॉकेट में, और इसका अभी जो मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी v0 है, और ये इसमें टोटल मास जो हो गया वह m0 है। तो v0 इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से, एंड m0 इज द टोटल मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल, ये फ्यूल के साथ इसका जो टोटल मास है। ना इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, और इसके बाद जो क्या होता है, एक दूसरा कंडीशन में बनाता हूं, तो जैसे इट स्टार्ट्स फ्लाइंग और इसमें क्या होता है, फ्यूल कम होने लगते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाती है ना, और इसमें मान लेता हूं फ्यूल कम होने लगा है, तो वो जो बर्न्ट आउट गैसेस में निकलना स्टार्ट कर दिया, ये है ना। तो मान लेता हूं अभी जो यहाँ पे मास है वह है m, है ना, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसका मास बचा वो m हो गया। ना अब थर्ड केस एक लेते हैं कि जैसे पहले डायग्राम बना लेता हूं ना, और ऊपर उड़ा जब तो वेलोसिटी इसकी हो गई, मान लेते ये वेलोसिटी गेन कर लेता है v प्लस dv, ये इसने वेलोसिटी जो गेन कर लिया v प्लस dv, और इसके अंदर जो फ्यूल बचा रह गया वो मान लेते हैं ये m में कुछ घट गया, तो यहाँ जो अब फ्यूल बचा रह गया वो है मान लेते हैं m माइनस डेल्टा m, टोटल मास जो बचा, जो फ्यूल घट गया उसके बाद जो बचा डेल्टा। तो ये डेल्टा m जो घटा वो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे ये डेल्टा m का उतना ही का गैस यहाँ पे निकल गया, है ना। अब भाई मास जितना घट रहा है उतना ही तो निकल रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो ये मास निकल रही है। आई होप कि विथ मान लेते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, ये जो ये बर्न्ट आउट गैसेस हैं, ये उनका मास टोटल डेल्टा m हो गया, और इसका मान लेता हूँ स्पीड, ये जिस स्पीड को से के साथ ये छोड़ रहा है रॉकेट को, वो मैं मान लिया u, है ना। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्री सिचुएशंस। ये क्या है, इनिशियली ये v0 वेलोसिटी के साथ है, इसका टोटल मास m0 था, अभी यहाँ पे कुछ मास घटा, है ना, इन के भी बीच में ये उड़ान भरा, अभी मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है, और इसके पास जो बचा हुआ टोटल मास अलोंग विद द फ्यूल इज m। नाउ इन द थर्ड केस कि जब मान लेते हैं ये एक स्पीड गेन करता है डेल्टा v प्लस डेल्टा v, मीन्स उतने टाइम में ये डेल्टा m मास लूज भी करता है, तो वो डेल्टा मास किधर गया, इधर पे गैसेस बन करके बाहर निकला, और मान लेता हूँ u स्पीड के साथ गैसेस निकल रहे हैं। नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे अप्लाई करता हूं। अभी ये जितना मोमेंटम गेन करेगा, ये जो जितना मोमेंटम गेन करेगा उतना ही वो किसके बराबर होगा, क्योंकि जितना ये लूज किया, ये इधर पे जो छोड़ा ये, है ना, बाय कंजर्वेशन, और ये जितना गेन करेगा, कितना गेन करेगा, जितना ये छोड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मोमेंटम कितना गेन करने वाला, ये मास m है, और मोमेंटम जो स्पीड कितना गेन किया डेल्टा v, तो ये जो मोमेंटम गेन किया वो है m डेल्टा v, जो कि किसके बराबर होगा, मतलब जितना बढ़ रहा है उतना ये, जितना इसका मोमेंटम बढ़ रहा है उतना ये जो इधर एग्जॉस्ट है वो घट रहा है ना, फ्यूल जो घट रहा है उसकी वजह से जो एग्जॉस्ट बन के निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस, तो वो कितना हो जाएगा डेल्टा m u, ये माइनस बता रहा है, ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है, वेयर u इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्न्ट आउट गैसेस। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस यू डेल्टा m बाय m। अगर मैं बात करूं फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज फॉर वेरी स्मॉल चेंज अगर यदि मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई एम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग जान रहे होते हैं कि ये जो बर्न्ड आउट गैसेस के जो स्पीड होगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट जितने स्पीड के साथ ये फिक्स्ड रहता है कि ये कितने स्पीड के साथ ये छोड़ रहा होता है, वो उसका तो बर्न करने का जो क्षमता है वो तो सेम रहेगा ना। तो ये जो स्पीड है ये यू हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये u हमारा कांस्टेंट हो गया, u मैंने हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम लोग इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर यूनिट्स लिमिट, सॉरी। तो dv इज इक्वल्स टू माइनस यू dm/m। तो इधर पे जो है हमारा वह स्पीड हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा v0 टू v, और इधर पे हमारा क्या जा रहा है m0, v0 टू v एंड m0 टू m। तो ये जो आने वाला है हमारा dv का हो जाएगा v लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू माइनस यू तो हमेशा मेरा ये मेरा कांस्टेंट है तो इसको मैंने ले लिया। तो dm/m dx/x के फॉर्म में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x के फॉर्म में हो गया, तो ये होता है log बेस ex। तो ये मैं लिख सकता हूँ log बेस em, और हमारा जो लिमिट हो गया m0 टू m। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस u log बेस e m माइनस log बेस e m नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूं v माइनस v नॉट इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो u आएगा हमारा ये माइनस, तो ये इधर पे आ जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा। तो u log e m नॉट माइनस log बेस e m। अब ये log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a/b। तो ये हो जाएगा v, इसको मैं इधर पे ले जाता हूं, v0 प्लस u log बेस e m0/m। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो एनी टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट is can be found if we know the initial velocity, the exhaust velocity of the burned gases and the left out mass। तो अगर यदि लेफ्ट आउट मास ये सारा चीज हमको अगर पता है तो we can find out the speed at any point of the time। Now अगर यदि यहाँ पे माने कि if our initial velocity is 0, तो what will be the velocity? v is equals to u log बेस e m0/m। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया जाए कि अभी इनिशियली ये रेस्ट में था, तो हमारा किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होने वाला है, v is equals to u log बेस e m0/m। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज योर फोर्स, व्हाट इज द फोर्स यू और यू कैन से थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो हम लोग ये जानते हैं कि सपोज दैट टोटल m टू फाइंड आउट थ्रस्ट, टू फाइंड थ्रस्ट या फोर्स, तो मान लेते हैं टोटल जो मास हो गया, टोटल मास ऑफ द रॉकेट इज से m अलोंग विद द फ्यूल, है ना, और इसके पास जो स्पीड आया वो आया v सपोज। तो यहां से ये कितने के बराबर हो जाएगा, जो मास गैस बन करके बाहर निकला m, और मान लेता हूँ बर्न आउट स्पीड है ये इसका u। तो यहाँ से जो v आएगा हमारा वह आ जाएगा माइनस m/M। ये मास, ये टोटल मास ऑफ द रॉकेट विथ फ्यूल है, ये आप लिख लेना, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल, ये आया। अब ये वेलोसिटी आया ना,
ये यहाँ से ये भी बता रहा है कि अगर गैसेस पीछे जा रहे हैं तो रॉकेट आगे की ओर जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जितना भी फ्यूल है सब तो रॉकेट का ही पार्ट है ना, तो वो अगर यदि किसी फोर्स के साथ नीचे जा रहा है तो वो सारे क्या है, इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर वक्त क्या होता है, लागू रहता है। खैर, तो अगर यदि मैं फोर्स निकालना चाहूँ, थ्रस्ट निकालना चाहूँ, तो ये क्या होता है, F इज इक्वल्स टू dp बाई डी टी। dp बाई डी टी चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, तो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी। अभी ये v हमारा क्या आने वाला है, F इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ m एंड दिस v विल बी माइनस एम यू बाई एम, माइनस एम यू बाई एम। तो ये एम कट गया, तो F इज इक्वल्स टू माइनस एम डी यू बाई डी टी। सो ये डी यू बाई डी टी को आप लोग कहते हैं, ये डी यू बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस, रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बर्न्ड गैसेस। तो फोर्स के लिए जितना फ्यूल बर्न हो रहा है पीछे से वही फोर्स जनरेट करेगा और इससे ये क्या करेगा, थ्रस्ट मिलेगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। थैंक यू।